السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک لینگویج کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلی کلاس میں ہم لوگوں نے مرکب توصیفی کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ مرکب توصیفی جس میں سے ایک ہمارا موصوف ہوتا ہے اور دوسرا ہمارا صفت ہوتا ہے، یعنی ایک موصوف یعنی ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو موصوف بنتا ہے اور دوسرا اسم جو ہماری صفت بنتا ہے۔ موصوف یعنی جس کے بارے میں اچھائی یا برائی کو بیان کیا جاتا ہے، اور صفت یعنی جس کے ذریعے ہم اس اسم کے بارے میں اچھائی یا برائی کو بیان کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم اسی مرکب وصفی کو پڑھیں گے کہ ہم مرکب وصفی کو یعنی مرکب توصیفی کو ترکیب میں ایز اے سبجیکٹ یعنی مبتدا کے طور پہ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے یہ ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے، آپ لوگ اس سے جڑ کر کے اور آپ کو پی ڈی ایف مل سکتی ہے ریویژن کے لیے، یعنی نظام اکیڈمی 22۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو کلاس اچھی لگ رہی تو شیئر بھی کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ اور لوگ سبسکرائب اگر آپ کریں گے تو جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا۔ شیئر کرتے ہیں تو اور لوگ بھی فائدہ اس سے اٹھائیں گے۔ اب ہم کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی المرکب الوصفی یوزڈ ایز اے مبتدا، یعنی ہم ایسے جملے کو پڑھیں گے، ایسے سنٹینس کو پڑھیں گے، ایسے واقعے کو پڑھیں گے جس میں مرکب وصفی یعنی ایک موصوف اور دوسرا صفت، یہ ہمارا ترکیب میں مبتدا واقع ہوگا یعنی سبجیکٹ واقع ہوگا، جس کو ہم ہندی زبان میں ادیش کہتے ہیں۔ ہم اس مثال کو لیتے ہیں، لکھا ہوا ہے الولد المستحید۔ الولد یہ ہمارا اسم ہے، ترکیب میں موصوف بن رہا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا المجتہد ہے، مجتہد یہ صفت ہے۔ موصوف صفت مل کر کے آپ کی ترکیب میں ایک مبتدا واقع ہو رہا ہے یعنی سبجیکٹ بن رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ناجحن آ رہا ہے، ناجحن آپ کی خبر بن رہی ہے یعنی پریڈیکیٹ۔ اس کا ترجمہ ہوگا الولد المستحید دا لیبوریس بوائے، یعنی محنتی لڑکا۔ اس کے بعد از لائیں گے کیونکہ سنگولر ہے۔ دا لیبوریس بوائے از ناجحن معنی ہوتا ہے سکسیسفل یعنی کامیاب ہے۔ ایسا لڑکا جو محنت کرنے والا ہے یعنی محنتی ہے، وہ کیا ہے؟ سکسیسفل ہے، یعنی اپنی لائف میں وہ کامیاب ہے۔ دوسری مثال ہم لیتے ہیں، اس میں ہے البنت الصغیرۃ۔ البنت الصغیرۃ، البنت آپ کا اسم ہے، ترکیب میں موصوف بن رہا ہے، اور دوسرا ہے الصغیرۃ، اس کی صفت ہے، یہ مرکب توصیفی ہے۔ دونوں مل کر کے آپ کے مبتدا واقع ہوں گے، اس کے بعد ذکیۃ یہ آپ کی خبر بنے گی۔ تو البنت الصغیرۃ یعنی دا لٹل گرل، صغیرہ یعنی لٹل یعنی چھوٹی، بنتو لڑکی کے لیے یعنی گرل، از، اور اس کے بعد پھر ذکیۃ آپ کی خبر یعنی پریڈیکیٹ بن رہی ہے، اس کو ہم کہیں گے انٹیلیجنٹ۔ البنت الصغیرۃ ذکیۃ، دا لٹل گرل از انٹیلیجنٹ۔ ہم آگے مثال دیکھتے ہیں۔ دوسری مثال ہے
ज़ैनबु अलकसलानतु नाइमतुन। ज़ैनब नेम है यानी प्रॉपर नाउन है, आपका मौसूफ बन रहा है। उसके बाद जो आपका आ रहा है अल कसलानतु, कसलानतु आपकी खबर बनेगी। तो ज़ैनबु अल कसलानतु यानी लेजी ज़ैनब, यानी सुस्त ज़ैनब, काहिल ज़ैनब। नाइमतुन यानी सो रही है। नाइमतुन आपकी खबर यानी प्रेडिकेट है। और ज़ैनबु अल कसलानतु ये आपका मुब्तदा यानी सब्जेक्ट है। तो द लेजी ज़ैनब इज स्लीपिंग यानी सो रही है। आगे मिसाल हम देखते हैं, लिखा है तागूरु अश्शाइरु। तागूर ये भी आलम है यानी प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको मारिफा बनाने के लिए अलिफ लाम लाने की ज़रूरत नहीं है। तागूरु अश्शाइरु यानी शायर टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो हिंदी ज़ुबान के मशहूर शायर थे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि तागूर अश्शाइरु द पोएट टैगोर यानी पोएट रविंद्रनाथ टैगोर इज। उसके बाद हम लाएंगे मशहूरुन, मशहूरुन आपकी खबर है यानी प्रेडिकेट है। तो द पोएट टैगोर इज फेमस, क्योंकि द पोएट टैगोर ये सिंगुलर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमने पहले भी पढ़ रखा है कि हम इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब को मुब्तदा और ख़बर के बीच में लाते हैं। तो तागूरु अश्शाइरु मशहूरुन, द पोएट टैगोर इज फेमस। अब दूसरा कॉलम बी वाला है, इसमें क्या है? इसमें आप देखेंगे हादिही, हादिही पहले आपका इसमें इशारा आया है। उसके बाद अस्साअतु अल जमीलतु, साअतु अल जमीलतु जो आपका है ये मौसूफ सिफत यानी अस्साअतु मौसूफ, उसके बाद अल जमीलतु ये सिफत, मौसूफ सिफत से मिल करके मुशारुन इलैह, यानी इसमें इशारा है तो उसका कोई मुशारुन इलैह भी होगा। तो हादिही साअतु अल जमीलतु, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर आपका अस्साअतु अल जमीलतु ए मुरक्कब वसफ़ी है यानी मौसूफ सिफत है, और तरकीब में इसमें इशारा का मुशारुन इलैह भी है। और हादिही साअतु अल जमीलतु यानी दिस ब्यूटीफुल वॉच, ये आपका मुब्तदा बन गया यानी सब्जेक्ट है। उसके बाद आपकी खबर यानी प्रेडिकेट आएगी गालियतुन, गालियतुन मतलब कॉस्टली यानी महंगी है। अब आगे है, आगे मिसाल है ज़ालिका ताइरु अस्सगीरु। ज़ालिका इसमें इशारा है, ये मुज़क्कर बईद के लिए यानी दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो ज़ालिका ताइरु अस्सगीरु यानी डैट लिटिल बर्ड, यानी वो जो आपकी छोटी चिड़िया है वो क्या है? इज़, क्योंकि इज़ एमार में से आता है। और जमीलुन माने होता है ब्यूटीफुल यानी सुंदर खूबसूरत। ज़ालिका ताइरु अस्सगीरु जमीलुन यानी डैट लिटिल बर्ड इज ब्यूटीफुल। तो हमने कॉलम फर्स्ट में यानी ए में 4 मिसालें पढ़ी। अलवलदुल मुस्तहिदु नाजिहुन, अलवलदु मुस्तहिदु मौसूफ सिफत से मिलकर के मुब्तदा, उसके बाद नाजिहुन खबर। इसी तरह ज़ैनबु अल कसलानतु नाइमतुन, इसी तरह अल बिन्तु अस्सगीरतु ज़कियतुन, तागूरु अश्शागिर मशहूरुन। 4 मिसाल है। उसके बाद वाली जो 2 मिसाल है उसमें इसमें इशारा मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह मुरक्कब वसफ़ी यानी मौसूफ सिफत, उससे पहले इसमें इशारा, दोनों मिल करके आपके तरकीब में मुब्तदा यानी सब्जेक्ट, उसके बाद गालियतुन और जमीलुन ये दोनों खबर बन रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसका जो रूल है, इसका जो कायदा है, इसका जो आपका नियम है, इसके में क्या किन किन चीज़ों को हमें
ख़्याल रखना, ध्यान रखना, ज़हन में रखना ज़रूरी है, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। इससे पहली यूनिट में हमने पढ़ा था कि मुरक्कब वसफ़ी, जिसमें एक मौसूफ़ आपका होता है और दूसरा सिफ़त, और मौसूफ़ सिफ़त मिल करके मुब्तदा बनते हैं और उसके बाद दूसरा आपका ख़बर होता है। और हमने बताया था कि मौसूफ़ सिफ़त में 4 चीज़ों में मुताबकत भी पाई जाती है। एक तो उसका एराब, दोनों का मौसूफ़ सिफ़त दोनों का एराब एक होगा। दूसरे है कि दोनों जेंडर में, यानी दोनों या तो मुज़क्कर होंगे या तो मुअन्नस होंगे। तीसरे है कि दोनों डेफ़िनिट या इंडेफ़िनिट, दोनों या तो मारिफ़ा होंगे या तो नकीरा होंगे। इसी के साथ नंबर में, यानी दोनों या तो वाहिद होंगे या तस्निया होंगे या जमा होंगे। अब हम आगे देखते हैं, आगे ये कहा जा रहा है कि अब हम जो पहली हमने चारों मिसालें देखी हैं, यानी जैसे था अल वलदुल मुस्तहिदु नाजिहुन, यानी चारों मिसालों में हमने पहले मौसूफ सिफत से मिल करके हमारा ये जो सेंटेंस है मौसूफ सिफत से मिल करके सब्जेक्ट बन रहा था, उसके बाद नकीरा की शक्ल में हमारी खबर वाक़े हो रही थी। तो वही बात कही जा रही है कि जो कॉलम 1 में हमने एग्जाम्पल पढ़ा है, सारे जो 4 आपके सेंटेंस थे, चारों सेंटेंस आपके मुरक्कबे वसफ़ी थे और एज़ आ मुब्तदा के तौर पे यूज़ हुए हैं। अब इनमें जब आप दोबारा इनको पढ़ेंगे तो इन 4 चीज़ों को आप गौर करेंगे तो चारों चीज़ें निकल के आएंगी। पहला है कि मुब्तदा जो आपका मुरक्कब वसफ़ी बनता है, यानी मौसूफ़ और सिफ़त, और अल वलदुल मुस्तहिदु, ये क्या है, इसको पहले लाया गया है खबर से। यानी इससे ये बात निकल के आती है कि ये जो मौसूफ सिफत से मिल करके मुरक्कब वसफ़ी जो हमारा मुब्तदा बन रहा है, ये खबर से पहले आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें क्या ज़हन में रखनी है कि मुब्तदा क्या होता है, डेफिनिट होता है। क्या होता है, डेफिनिट, यानी मारिफा होता है। आपने देखा था कि अगर कोई ऐसा इस्म है जो प्रॉपर नाउन नहीं है, उसको मारिफा बनाने के लिए अलिफ लाम शुरू में लगाया गया, जैसे वलदुन से पहले अल वलदु अल मुस्तहिदु। तो इससे क्या निकल के आया, जो आपका मुब्तदा है वो डेफिनिट होता है, यानी मारिफा होगा। दूसरी बात, मारिफा बनाने के लिए आपने पढ़ा है कि अलिफ लाम लाते हैं, और इसी तरह अगर वो प्रॉपर नाउन है, जैसे टागोर अशायर, रविन्द्रनाथ टैगोर, टागोर क्या है, ये किसी का नेम है, इसलिए इस पर अलिफ लाम नहीं लाया जाएगा। ये बजाते खुद ही आलम है, ये खुद ही मारिफा है। पहली चीज़ हमने देखी कि मुब्तदा को पहले लाएंगे, मुब्तदा डेफिनिट होगा। और तीसरी चीज़ है कि मुब्तदा और ख़बर में ये सिमिलैरिटी पाई जाएगी, एकसानियत पाई जाएगी, एक रूपता पाई जाएगी किसमें, नंबर में। नंबर का मतलब, अगर आपका जो मुब्तदा है अगर वो वाहिद तस्निया जमा में से कुछ है तो उसी तरह आपकी खबर भी आएगी। दूसरी बात, जेंडर में, इसमें जेंडर का मतलब है कि अगर आपका मुब्तदा जो मौसूफ सिफत से मिलकर के मुब्तदा बन रहा है, अगर ये जो है तरकीब में अगर ये मुज़क्कर है तो उसकी खबर जो आएगी वो भी मुज़क्कर लाई जाएगी। इसी तरह अगर वो मुअन्नस है, यानी मौसूफ सिफत से मिलकर के मुब्तदा मुअन्नस है, तो उसके बाद जो खबर आएगी वो भी मुअन्नस लाई जाएगी। अब आखिर में चौथी बात हमें क्या जहन में रखना है कि मुरक्कब वसफ़ी जो कि मुब्तदा से शुरू होता है, जो मुब्तदा होगा उस पे हालत रफ़ई यानी ज़म्मा आएगा। अब क्योंकि मारिफा होता है इसलिए उस पे तनवीन नहीं आएगी। इसी के साथ अगर जो खबर है, खबर क्योंकि नकिरा होती है तो लिहाजा उस पर आपकी तनवीन भी लाई जाएगी। उम्मीद है कि इसको हम लोग समझ गए होंगे।
अब आगे इसके बारे में कुछ डिटेल और जानने की कोशिश करते हैं कि मुब्तदा और खबर जी, यानी लाइक द मुब्तदा, यानी मुब्तदा की तरह खबर क्या है, यही कंडीशन, यानी जो कंडीशन पहले बताई गई थी इन्हीं सब कंडीशन को फॉलो करेगी। क्या क्या कंडीशन? कि पहला है कि जो आपका खबर आएगी ये मुब्तदा के बाद आएगी, यानी पहले आपका मुब्तदा आएगा उसके बाद आपकी खबर आएगी। मुब्तदा मारिफा होता है और खबर क्या होगी, वो नकीरा होगी यानी इंडेफिनिट होगी। दोनों सिमिलर होंगे किसमें? दोनों सिमिलर होंगे जेंडर में। मैंने बताया जेंडर का मतलब अगर मुब्तदा मैस्कुलिन है यानी मुज़क्कर है तो आपकी खबर भी मैस्कुलिन होगी, और इसी तरह अगर मुब्तदा फेमिनिन है यानी मुअन्नस है तो इसी के साथ आपकी खबर भी मुअन्नस आएगी। नंबर का मतलब वाहिद तस्निया जमा, यानी मुब्तदा जिस तरह होगा वाहिद तस्निया जमा उसी तरह खबर आएगी। और इसके साथ एक चीज़ ज़हन में याद रखना ज़रूरी है कि मुब्तदा पे तो तनवीन नहीं आएगी, लेकिन जो खबर है ये नकीरा होती है। नॉमिनेटिव केस में यानी हालत रफ़ई में इस पे हम तनवीन लाते हैं। अब हम इसको मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। आगे आपको मिसाल दी है, इसको आप विश्लेषण करेंगे, इसका तहलील इन्हें इसका जायज़ा लेंगे, एनालिसिस करके हम देखते हैं इस मिसाल को कि अल बिन्तु अस्सगीरतु, क्या लिखा हुआ है? अल बिन्तु अस्सगीरतु। बिन्तु मुअन्नस है, लड़की का नाम है, लेडीज हैं, और इसलिए इसके मुकाबले में इसकी सिफत आ रही है सगीरतु, गोलता के साथ मुताबकत पाई जा रही है। वाहिद है इसलिए इसकी सिफत भी वाहिद है। दोनों मौसूफ सिफत से मिल करके आपके मुरक्कबे वसफ़ी हो करके मुब्तदा बन रहे हैं, यानी सब्जेक्ट वाक़े हो रहे हैं तरकीब में। आपने देख लिया दोनों में मुताबकत है। अब मुब्तदा के एतबार से खबर में भी हम मुताबकत को बाकी रखेंगे, क्योंकि आपका मौसूफ सिफत से मिल करके मुब्तदा मुअन्नस है, इसलिए आपकी ये जो खबर ज़कियतुन बन रही है, इंटेलिजेंट के माने में है, ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी मुअन्नस है और वाहिद है। और इससे पहले बताया गया है आपको कायदा कानून में कि ये जो आपका खबर होता है इस पे नकीरा होता है, खबर में तनवीन आती है। तो देखिए ज़कियतुन, यानी तनवीन का साउंड आ रहा है ज़कियतुन, और इसमें एकसानियत यानी सिमिलैरिटी भी पाई जा रही है किससे? यानी मुब्तदा से, क्योंकि वो मुअन्नस है, मुरक्कबे वसफ़ी जो मुब्तदा बन रहा है, इसीलिए ज़कियतुन को हमने मुअन्नस ही इस्तेमाल किया है। अब इसको हम और मज़ीद मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अल बिन्तु अस्सगीरतु ज़कियतुन। अब देखिए दोनों क्या हैं? मौसूफ सिफत दोनों क्या हैं? आपके डेफिनिट हैं, क्योंकि ये मुब्तदा है, यानी अल बिन्तु अस्सगीरतु। दूसरी चीज़ क्या है? मौसूफ और सिफत आपके क्या हैं? ये फेमिनिन है यानी मुअन्नस हैं। तीसरी चीज़ मौसूफ और सिफत दोनों क्या हैं? सिंगुलर है यानी नंबर में एक है, वाहिद है। इसी तरह मौसूफ और सिफत दोनों क्या हैं? नॉमिनेटिव केस में हैं। और वावेल साइन इस पे क्या आ रहा है? रफा आ रहा है यानी ज़म्मा आ रहा है। तो इन चारों केस को हमने बिल्कुल एनालाइज करके समझ गए हैं इंशाअल्लाह। अब अगर कोई मौसूफ सिफत की कोई तरकीब है अरबिक ज़ुबान में, हम उसको फ़ौरन पकड़ लेंगे, और उसके बाद कोई नकीरा है तो हम समझ जाएंगे ये दोनों मौसूफ सिफत से मिल करके मुब्तदा बन रहे हैं, उसके बाद नकीरा जो है उसकी खबर बन रही है। इसी तरह दूसरा जो कॉलम था उसमें पहले इसमें इशारा लाया गया था, इसमें इशारा के बाद मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत लाने के बाद हम उसकी खबर नकीरा के साथ लाए थे,
वही बात इसमें कही जा रही है कि जो ग्रुप बी था आपका, ग्रुप बी में मुरक्कब वसफ़ी फर्स्ट एज अ मुशारुन इलैह, यानी उससे पहले इसमें इशारा जब आया तो उसके बाद वाला मुरक्कब वसफ़ी मुशारुन इलैह बन रहा था, और इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिलकर आपका मुब्तदा हो रहा था। आपको मालूम है मुब्तदा पे वावेल साइन यानी उसका जो एराब आता है, क्योंकि वो मारिफा होता है तो सिर्फ ज़म्मा आता है। उसके बाद जो उसकी खबर आएगी वो नकीरा की शक्ल में आएगी और उस पर तनवीन आती है। जैसा कि जो अभी कायदा बताया गया है, इसमें इशारा मुशारुन इलैह का, इसको हम मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है हादिहि स्साअतु अल जमीलतु, हादिहि स्साअतुल जमीलतु, हादिहि इसमें इशारा, अस्साअतु मौसूफ, अल जमीलतु सिफत, इसमें इशारा मौसूफ सिफत से मिल करके मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन इलैह से मिल करके दोनों तरकीब में क्या वाक़े हो रहे हैं, मुब्तदा यानी सब्जेक्ट। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग गालियतुन यानी कॉस्टली, ये क्या है आपकी खबर बन रही है। उम्मीद है कि इसको हम आसानी से ज़हन नशीन कर चुके हैं। अब इसको मज़ीद इसका रिवीजन के तौर पे इसको समझने के लिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, क्योंकि जब तक हम उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ जो मिसालें जो आपका कायदा कानून बताया गया है वो समझ में सही से नहीं आएंगे। तो ये आपको एक्सरसाइज कराई जा रही है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए इसकी एक्सरसाइज मैं खुद करता हूँ। आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो दोबारा फिर उसको मिला करके आप हल कीजिए ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए। अब हम मिसाल देखते हैं। लिखा है अल वलदु सदूक़ु महबूबुन, ये अरबिक का जुमला है, सेंटेंस है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट आप उर्दू में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैं इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करता हूँ। अब देखिए अल वलदु अस्सदूक़ु, ये दोनों मौसूफ सिफत से मिल करके मुब्तदा बन रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश ज़ुबान में भी मुब्तदा का तर्जमा पहले होता है। अल वलदु अस्सदूक़ु, सदूक़ माने होता है ऑनेस्ट यानी ईमानदार। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि मारिफा है इसलिए दा पहले हम ले आते हैं। दा वलदुस सदूक़ु यानी सदूक़ु मतलब ईमानदार यानी ऑनेस्ट। द ऑनेस्ट बॉय, वलदुन यानी बॉय। अब हम इज लाएंगे क्योंकि सिंगुलर है। महबूबुन, महबूबुन यानी लोएबल, लोएबल यानी ऐसा है जिससे प्यार किया जाए, जिससे मोहब्बत की जाए। इसी के साथ आप लवली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लवली भी। दूसरा क्या है, अल अल अम्बजु अल फिज्जु हामिलुन। अल अम्बज ये मैंगो के लिए इस्तेमाल होता है यानी मांझू, उसके लिए अम्बज भी अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। अल अम्बज अल फिज्जु, फिज्जु माने होता है जो पका हुआ ना हो, और हामिज़ुन मतलब होता है खट्टा। तो हम क्या कहेंगे, दा, अब यानी फिज्जु यानी खट्टा, यानी इसके लिए हम आसान लफ्ज़ लाते हैं अन राइप, जो पका हुआ नहीं है, मैंगो लिख देते हैं जी। आगे क्या है, अब इसकी खबर लाते हैं। खबर लाने से पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिंगुलर है। हामिदुन सोर, SOAR जी। तीसरी मिसाल लेते हैं, अत्ताजिरु अल अमीनु ममदूहुन, ऐसा ताजिर जो अमानतदार है,
यानी ईमानदार है, तो क्या कहेंगे द ऑनेस्ट अमीन सदूक दोनों एक एक, एक दूसरे के आप कहेंगे पर्यायवाची हैं, यानी मुतरादिफ हैं। द ऑनेस्ट ताजिर के लिए क्या कहेंगे मर्चेंट। द ऑनेस्ट मर्चेंट, अब इजी आएगा। ममदूहुन, ममदूहुन यानी जिसकी तारीफ की जाए। प्रेसफुल ले आते हैं। अल वलदु अल कसूलु यानी ऐसा लड़का जो सुस्त है, तो क्या कहेंगे द लेजी वलदु के लिए बॉय इज ले आएंगे। उसके बाद क्या है खासिरुन यानी नुकसान उठाने वाला है, यानी लॉसर यानी वो हमेशा खसारा उठाने वाला है। ऐसा लड़का जो सुस्त है वो खसारा उठाने वाला है। आगे है अल इम्तिहान अस्सनविय्यु, सनवी यानी सालाना इम्तिहान, उसके लिए सनवी का लफ्ज़ आता है। द एनुअल, एनुअल और इम्तिहान के लिए एग्ज़ाम। इस और आगे क्या है करीबुन, करीबुन मतलब इसके लिए आते हैं सून। एक एक्सरसाइज हो गई। अब हम आगे दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है हमारे सेंटेंस इंग्लिश में दिए गए हैं, इसको हम अरबिक में ट्रांसलेट करेंगे। जो कायदा हमने पढ़ा है मौसूफ सिफत मुब्तदा उसके बाद खबर, और इसका एराब भी हम लगाते हैं। लिखा है द ओल्ड वुमन इज अ बेगर, यानी बूढ़ी औरत क्या है भिखारी है। तो हम क्या ले आते हैं औरत के लिए अलमरअतु माने औरत हो गया, और ओल्ड यानी बूढ़ी के लिए क्या लफ्ज़ ले आते हैं अरबी जुबान में आता है अजूजू, अजूजू यानी बूढ़ी हो गया। ये आपका मौसूफ सिफत से मिलकर के मुब्तदा इज अ बेगर, बेगर के मतलब हम ले आते हैं मुतसव्विलुन यानी सवाल करने वाली यानी भीख मांगने वाली है। अब आगे है द गवर्नमेंट ऑफिस इज क्लोज्ड, यानी जो गवर्नमेंट की ऑफिस है, सरकार की जो ऑफिस है, सरकारी ऑफिस क्या है बंद है क्लोज है। उसके लिए हम क्या ले आते हैं अल मक्तबु, अल अल मक्तबु। सरकारी के लिए अल हुकूमिय्यु, हुकूमिय्युन मतलब गवर्नमेंट के। अल मक्तबु अल हुकूमिय्यु क्लोज्ड यानी मुग़लक़ुन। आगे है द न्यू बुक इज कॉस्टली, न्यू बुक, बुक के लिए अल किताब, अल किताबु, और न्यू के लिए अल जदीदु। ये मौसूफ सिफत हैं, सारी मुताबकत पाई जाती है। अल किताबु अल जदीदु यानी नई बुक। क्या है कॉस्टली, कॉस्टली के लिए अभी हमने पढ़ा था गालिजुन यानी महंगी है कॉस्टली है। द लिटिल बॉय इज स्लीपिंग, लिटिल बॉय यानी छोटा लड़का, यानी अल वलदु अस्सगीरु छोटा बॉय हो गया। स्लीपुन यानी क्या है स्लीपिंग यानी सो रहा, यानी नाइमुन यानी सो रहा है। द इंडियन स्टील इज फेमस, इंडियन स्टील, स्टील के लिए हम लाते हैं अल
फूलाजु, फूलाज माने होता है स्टील, और इंडियन यानी अल हिंदीयू, अल हिंदीयू। आगे क्या है, शहीरुन या मशहूरुन दोनों लफ्ज आता है। मशहूरुन। अब आगे हम चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज। इसमें क्या है, आपका पहले इसमें इशारा है, उसके बाद मुशारुन इलैह मौसूफ सिफत की शक्ल में है, इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिल करके आपके मुब्तदा, उसके बाद खबर लाई गई है। इसको हमें इंग्लिश ज़ुबान में या किसी भी ज़ुबान में इसका ट्रांसलेट करना है, तर्जमा करना है, अनुवाद करना है। अब देखते हैं पहला क्या है, हादिहिल गुरफतु अस्सगीरतु। हादिही के लिए क्या लाएंगे, दिस, दिस। इसमें इशारा हो गया, अल गुरफा सगीरा यानी स्मॉल, गुरफा यानी कमरा, इज क्या है, खालियतुन यानी एम्प्टी। दूसरा क्या है, ज़ालिकल क़मीसु अल अब्यदु वसीखुन। ज़ालिका है तो इसलिए डैट आएगा, और अल क़मीसु अल अब्यदु, अब्यद मतलब वाइट, कमीज के लिए शर्ट, इज क्या है, वसीखुन, वसीखुन यानी गंदी यानी डर्टी। अब आगे देखते हैं, हादिहिल मदरसतु अल अहलियतु। अहलिया यानी प्राइवेट, हादी है तो इसलिए दिस ही आएगा, दिस प्राइवेट मदरसा स्कूल इज मशहूरुन, अभी मशहूरुन आया था ऊपर यानी फेमस। चौथा है, हादर रजुलु अश्शैखु सीनिजुन। शैख यानी बूढ़ा, हादा दिस, शैख यानी बूढ़ा, ओल्ड, रजुलु मैन, इस सीनिजुन यानी चाइनीज है, चाइनीज है यानी चाइना का रहने वाला है। अब आगे है तिल का, अत्ताविलतु अल जदीदतु मकसूरतुन। तिल का है तो इसलिए डैट आएगा, काबिलतु जदीदतुन यानी न्यू, काबिला टेबल मेज, इज मकसूरतुन यानी टेबल टूटा हुआ है यानी ब्रोकन। तीन एक्सरसाइज हो गई, और चौथी एक्सरसाइज शायद कि लास्ट है। इसको ये हमारा इसमें इशारा मुशारुन इलैह पे, मुशारुन इलैह यानी मौसूफ सिफत से मिल करके मुब्तदा यानी सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद हमें खबर लानी है, और आखिर में एराब उसका जाहिर करना है अरबिक ज़ुबान में। अब हम देखते हैं, डैट यंग मैन इज़ एन इंजीनियर। डैट है तो इसलिए ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे, यानी ज़ालिका यंग मैन, मैन के लिए रजुलू, या रजुलू, और यंग के लिए अशाबू यानी नौजवान, रजुलु शाबू हो गया। इस एन इंजीनियर, इंजीनियर के लिए आता है मुहंदिस, इंजीनियर है। दिस अरबिक डिक्शनरी इज न्यू, दिस है तो इसलिए हादा आएगा, हादा। डिक्शनरी के लिए कामूस का लफ्ज आता है, अल कामूसु, और अरबी के लिए
القاموس العربی. کیا ہے؟ نیو یعنی جدید. آگے کیا ہے؟ ڈیٹ نیو پین. ڈیٹ ہے تو اس لیے ذالکہ کا استعمال کریں گے، اس میں اشارہ. آگے کیا ہے؟ نیو پین. پین کے لیے قلم، نیو کے لیے جدید. اس بیوٹیفل، بیوٹیفل کے لیے جمیل. جمیل کا کئی مرتبہ استعمال آ چکا ہے. اب آگے ہے دس نیو شرٹ از کاسٹلی. دس ہے تو ہاذا ہی آئے گا. شرٹ کے لیے قمیص. نیو جدید. اور مہنگی ہے یعنی غالی. آگے ہے دس ینگ بوائے. دس ہے تو ہاذا ہی آئے گا. ہاذا. بوائے ولدن لڑکا. ولد ینگ یعنی صغیر. هذا الولد الصغیر is a میکینک یعنی میکینیکل انجینئر ہے. میکانی کی جن، اسی کا کی تعریف میکانی کی جن یعنی میکانی کی جن. تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہو گئی. آج کی سبق میں ہم لوگوں نے کیا سیکھا کہ موصوف صفت کے جملے، ایک موصوف ایک صفت مل کر کے مبتدا بنتے ہیں، اس کے بعد اس کی خبر آتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہمارا موصوف صفت ہے یہ مشار الیہ بنے گا، اس سے پہلے اس میں اشارہ لاتے ہیں، اس کے بعد خبر آتی ہے. امید ہے کہ آج کی کلاس آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. اب کلاس ختم کرنے سے پہلے بس ایک جنرل انفارمیشن یہی ہے کہ ٹیلی گرام چینل سے آپ کو PDF مل جائے گی. کلاس اگر اچھی لگی ہے تو آپ لائک کرتے ہوئے جائیں، کچھ آپ کا فرض بنتا ہے تاکہ موٹیویشن لیول پڑھانے والا کے بنا رہے اور آپ کی کلاس چلتی رہے. اور آپ کمنٹ بھی کر کے جائیں، کوئی مشورہ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. اور اس کو دوستوں میں شیئر بھی کریں جو بھی عربک زبان سیکھنا چاہتے ہیں. اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے جیسے ہی ویڈیو کوئی نئی اپلوڈ ہو. بس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مع السلامہ، الی اللقاء.